Hello everyone. Today we discuss the free radical substitution reactions in alkanes. Before going in details, first of all, we learn about the breaking of covalent bond. As you know, the covalent bond is broke by two ways. The first one is heterolytic bond dissociation and the second one is homolytic bond dissociation. As you already know, in heterolytic bond fission, ions are generated because the bonded pair goes to one fragment at a time. That's why here the positive and negative ions are produced. However, in homolytic bond fission, the bonded pair of electron distribute symmetrically between the two fragment atoms. That's why here the free radicals are generated. Now, the formation of radicals. How radicals are formed? The radicals are formed by the heating or by the irradiation with light. For example, on heating the peroxides, the alkoxy radicals are formed. In another example, halogen in the presence of light or heating form radicals. So this is the formation of radicals, how radicals are formed. There, what are the reactions of radicals? Here some information about the radicals. The radicals are small radicals are short-lived and highly reactive species. They tend to react for pairing of their unpaired electrons. For example, hydrogen abstraction. So here you can see the chlorine free radical abstract hydrogen from the methane and form hydrogen chloride and methyl free radical. So one of the reaction which involve in by the radical is hydrogen abstraction, and the second the addition to a multiple bond. तो कहीं भी multiple bond होगा वहाँ पे जो radical होगा वो क्या करेगा, ऐड हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होगा कि जो कंपाउंड जो भी आपका जो सबस्ट्रेट होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा. ये कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन से जो इसमें दो कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने पाई बॉन्ड फॉर्म किया था वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसका इसके पास, इसका इसके पास. इनको हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं. किनको? जब भी हम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कौन सा शो करेंगे, हाफ हेडेड एरो. ठीक है. तो इधर कार्बन के पास एक रेडिकल जनरेट हुआ, कार्बन रेडिकल और एल्काइल रेडिकल ने क्या बना दिया, आपस में बॉन्ड बना दिया और इधर एक जनरेट हो जाएगा. तो यहाँ एक दूसरा रेडिकल जनरेट हो जाएगा. तो ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी. तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन रेडिकल्स. नाउ व्हाट इज द हियर the stability order of alkyl free radicals. So as you all know, the order of alkyl free radicals, 3 degree free radical is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree and 1 degree is more stable than मिथाइल फ्री रेडिकल. ये जो ट्रेंड है आप जानते ही, कार्बोकेटायंस का जो ट्रेंड था जनरली उसी तरह वही ट्रेंड है. कार्बोकेटायन में भी यही ऑर्डर फॉलो करता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटायन. ठीक है. तो ये आपने पढ़ा होगा. हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोकेटायंस हैं या जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये एक पार्ट है. द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सेम एज फॉर कार्बोकेटायंस. Although uncharged, the free radicals are electron deficient. They have no charge. They do not carry positive or negative ions, but they are electron deficient. So you know very well here. By this example, total electrons are 7. So there is no completion of octet. So that's why they are electron deficient. And the another point which is important, the electron donating group, the presence of electron donating groups, because they are electron deficient, that's why electron donating groups provides stability to the free radicals. ठीक है. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे फ्री रेडिकल से अटैच, वो एल्काइल रेडिकल उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर हम जो है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल रेडिकल का, उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की संख्या के आधार पर भी बता सकते हैं कि क्यों टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि टर्सरी में ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। द ज्योमेट्री ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स, बिकॉज इट इज sp2 hybridized, दैट्स वाई इट इज प्लेनर। तो p और दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पे शो करिए, ये वो p ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज फ्री रेडिकल। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट where the radical substitution, where we find free radical substitution reaction? We find free radical substitution reaction in alkanes. तो here the example, the reaction of alkanes with halogens. तो जो एल्केन्स की रिएक्शंस होती है हैलोजेंस की, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो मीथेन, इथेन एंड अदर एल्केन्स जो हैं, दे विल रिएक्ट विद फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। In generally, we see here the chlorination and bromination, because you know fluorine is very reactive and iodine is very unreactive. That's why the major reactions in alkanes is from chlorine and bromine. Alkanes do not react with appreciably with I2, with iodine, because we know iodine is almost unreactive. ठीक है, दैट्स वाई। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल विद मिथेन। मिथेन के साथ क्या करते हैं, तो मिथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीटिंग, मिथेन के साथ क्या बनाते हैं, हेलोमीथेन, डाई हेलोमीथेन, ट्राई हेलोमीथेन, टेट्रा हेलोमीथेन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। तो आप देख रहे हैं एट द वन टाइम हाइड्रोजन इज, एक हाइड्रोजन सबको सब्स्टिट्यूट किया किससे, एक हाइड्रोजन से, तो मिथाइल हैलाइड बना। दूसरा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया दूसरे हाइड्रोजन से, तो डाई हेलो, ऐसे ट्राई हेलो, ऐसे टेट्रा हेलो। ठीक है, दिस इज द, दैट्स वाई देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हेलोमीथेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन विच वी फाइंड इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन alkanes. So there is some important point which can you see here. In halogenation of an alkane, what is this? It is a substitution reaction. This is a substitution reaction and a multiple substitution almost always occur. तो यहाँ पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक हैलोजन और एक मिथाइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो मिथेन्स भी फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in alkanes. Thank you very much.